السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں، میں نے آپ کو کل کی آڈیو میں یہ سنوایا تھا کہ ایک دیوبندی جو جماعتی ہے وہ ہمارے اقرار قادری صاحب کو جماعت میں لے جانے کی کوشش کرتے تھے اور ان کو الٹی سیدھی باتیں بتاتے تھے، بہکاتے تھے، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو انہوں نے میری بات کرائی۔ اب جب میری بات کرائی تو جب میری بات اس سے ہوئی تو اس نے کہا کہ ہاں، اگر ہمارے ماں باپ کو کوئی برا کہے گا، کوئی گالی بکے گا تو ہم اس کو بھی سینے سے لگائیں گے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ صبر تحمل جو ہے کتنی دیر قائم رہے گا؟ تو اس نے کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا۔ جناب اب دیکھ لیجئے اس کا تحمل ایک دن نہیں بیتا اور اس کا صبر تحمل ٹوٹ گیا اور اس کا پورا گھرانہ مار پیٹ پر اتر آیا۔ یہ لوگ جتنی تعداد میں ہوتے ہیں، جتنی پاور میں ہوتے ہیں، اتنا ہی ظلم بھی کرتے ہیں۔ یہ بات حق ہے، سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جہاں پر ان کی تعداد ہوتی ہے وہاں پر جتنا ان سے ظلم ہو سکتا ہے اتنا یہ ظلم کرتے ہیں۔ اور سننے میں آیا ہے کہ قادری صاحب پر جو ہے ہاتھ بھی اٹھایا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، اور قادری صاحب بھی ڈر رہے تھے، ان کو ڈرا رہا ہے کہ آڈیو ڈیلیٹ کرا ورنہ ہم تجھے ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، یوں کر دیں گے، تو کر دیں گے، سمجھے، دھمکی دے رہا ہے۔ یہ علی گڑھ کے آس پاس جو متھرا ہاتھرس پڑتا ہے ادھر کہیں کا رہنے والا ہے، اور وہاں جو قادری صاحب ہیں وہ شاید سنیوں میں اکیلے پڑ گئے ہیں، کیونکہ آج تو سنی کہلانے والے بھی ناموس رسالت کے لیے تیار نہیں ہوتے، کھڑے نہیں ہوتے۔ بس دین دنیا پیسہ ہی ان کا سب کچھ بن کے رہ گیا ہے۔ خیر، آگے کی آڈیو سنیے، پھر میں آگے کچھ سنواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ قادری صاحب کو دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، مجھے بھی دھمکی دے رہا تھا، سمجھے؟ سنیے آگے کی گفتگو۔ ماشاءاللہ، تو حضور سے محبت بھی کرتے ہوں گے؟ بالکل۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ اپنے گھر والوں سے اور اپنے بھائی بہن سے اور اپنے والدین سے بھی محبت کرتے ہوں گے؟ ہاں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی بندہ آئے آپ کے سامنے اور آپ کے والدین کو گالی بکنے لگے، کیا معاملہ کریں گے اس کے ساتھ؟ گلے سے لگائیں گے یا ڈانٹ ماریں گے؟ نہیں، گلی سے لگائیں گے۔ وہ آپ کے ماں باپ کو گالی بک رہا ہے اور آپ اس کو گلے سے لگائیں گے، یعنی آپ کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہے؟ نہیں، محبت ہے، اسے سمجھائیں گے کہ ایسے گالی دینا اچھی بات تھوڑی نا ہے۔ آپ نے گلے سے لگانے کی بات کہی ہے نا؟ ہاں، گلی سے لگا کے سمجھائیں گے، کیونکہ ایسے اسے مارنے لگ جائیں گے تو وہ تو کبھی سمجھ نہیں پائے گا پھر۔ اچھا اچھا، یہ تحمل اور یہ محبت اور یہ اتحاد کب تک قائم رہے گا آپ کے اندر؟ جب تک زندہ ہے، جب تک۔ ماشاءاللہ، سن کر بڑی خوشی ہوئی آپ سے کہ اتنے صبر والے ہیں آپ، کہ اگر آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی بکے تو آپ اس کو سینے سے لگا کے سمجھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سن کر اچھا لگا۔ کیونکہ ہمارے نبی نے جب بڑھیا سے اتنا کوڑا سہا لیا تو ہم مطلب اس کی گالی نہیں سہ سکتے۔ جی 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 جی۔ ہلو 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 جی صاحب، یہ فرما رہا ہوں، آپ نے کل ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے یوٹیوب پہ۔ اچھا، آپ کون ہیں؟ اس ویڈیو کو ہٹانے کا کیا لوگ اب؟ کون بول رہے ہیں آپ؟ کون بول رہے ہیں؟ یا تم پہ ڈولے جو بتاؤ پہل دو جی کیا بولے؟ ہلو، جی جی، نہیں ان کو آپ کون بول رہے ہیں؟ اتنی گالیاں دوں گا ابھی یا اتنی سالے وہاں آگے پیلوں گا تب بھول جائے گا، بتا رہا ہوں تجھے، اس ویڈیو کو ہٹا دینا۔ آپ کون بول رہے ہیں جناب؟ تیری ماں کی چوت بول رہے ہیں ہم، بولے وہ بول رہے بدتمیز تیری بات بھیا چودھری کر دی یہاں پہ بہت ساری کے تب تک ویڈیو اپلوڈ کرو گا۔ آپ کون بول رہے بولا ہیں؟ بولا کچر کی کون بول رہے ہیں آپ؟ کون بول رہے ہیں؟ پہلے پتا تو بتائیے۔ ہلو، ہلو،
हेलो हेलो। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई। वालेकुम अस्सलाम। वो उससे क्या बात हो गई? ये बात हुई थी कि आपकी किससे? उसी से जो कल जिसने बात कराई थी। ढक्कन ढक देते उसे। आप ही ने तो बात कराई थी। हाँ, मैंने जिससे बात कराई थी उससे क्या बात हुई? वो ऑडियो मैंने डाल दी है, आप सुन लो। नहीं, वो मतलब जो कह रहा था अभी मेरे पास ऐसे ही उसका फोन आया है, तो वो मुझसे यार मतलब ऐसी बातें कर रहा था। कैसी? थी मतलब ऐसे ही, क्या सही नहीं रहता कि ये बरेलियों का देखो ये काम ऐसा है, ये है वो है, क्या मतलब इस तरीके से बरेलवियों को हल्के में ले रही है, कहियो बेटा हल्के में मत ले। नहीं देखो ऐसा है ना नूरसन भाई, जैसे मान लो हम हैं यहाँ पे अकेले, अगर वो आप पे उंगली भी टच कर दे तो मुझे तुम बताना। नहीं देखो ऐसा होता है कि आप जैसे मतलब हम मतलब 5 भाई हैं, समझो पहले बात को मेरी, उसमें 2 भाई मतलब हमारे यहाँ रहते नहीं है और 2 मैं तो खुद अकेला हूँ यार हजरत। नहीं, मैं तो अकेला। वैसे तो हमें अल्लाह का ऊपर भरोसा है, वो हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी मतलब जैसे माहौल के हिसाब से भाई वो जैसे उसने कहा, देखिए हजरत, जैसे उसने कहा कि अगर मेरे माँ बाप को कोई गाली बकेगा तो मैं उसको सीने से लगाऊंगा। अच्छा, तो मैंने तो उसको या उसके माँ बाप को गाली नहीं बकी है जी। तो आपको मतलब किस बात का डर लग रहा है? नहीं, मुझे मतलब इस बात का है, जैसे अभी उसने मेरे पास फोन करा, क्या कह रहा था? मुझे दे रहा था कुछ, मुझे ऑडियो दीजिए वो। मैं तुम्हें आपको बता दूंगा। वैसे मेरी सुनो, जैसे उसने मुझसे ये कहा कि जैसे अभी उन्होंने जैसे मेरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल दी है। मैंने तो उससे कल कहा था ना कि तेरे नंबर के साथ ये ऑडियो यूट्यूब पे जाएगी। हाँ तो वगैरह किसी ने मेरे पास फोन करा है। हाँ तो बहुत लोग करेंगे, अभी तो किसी एक ने ही किया होगा। हाँ तो कह रहा है उन्हें समझा दो इस तरीके काम ना करे। समझा दो, हाँ उससे कह दो तू समझ जा और तू हमें कहीं भी ले जाने की कोशिश मत कर। वो जो कह रहा था ना आपसे कि जमात में चलो एक बार, नहीं कह रहा, तो क्यों कह रहा है? हम तो नहीं जाएंगे। नहीं वो कह क्यों रहा है भाई? अरे जो हम कर रहे हैं हमें करने दे, जो तू कर रहा है तू करता रहे, क्या भाड़ में। जब हम जमात में जाते ही नहीं, जब लगाव रखते ही नहीं, तो क्यों जाए जमात में? क्यों सिर हो रहा है? हाँ यही तो हमने कही, हमें जाना ही नहीं है। हम क्यों ऐसे शैतानों के साथ जाएं जिनका ख्याल ये है माज़अल्लाह के रसूल पाक का ख्याल नमाज में लाना गधे बैल के ख्याल से बदतर है? क्यों ऐसे लोगों के साथ दें हम क्या को देंगे? तो मुझे कह रहा था तो उससे बोलो। हाँ उससे बोलो भाई तेरा काम तू कर, हमारा काम हमें करने दे, बात खत्म हो गई। मुझसे अभी वो उसे लाइन पे ले लो। नहीं उसकी अभी कॉल आई है, मैं लाइन पे लेता हूँ उसे, ठीक है? नहीं 1 मिनट 1 सेकंड रुक जाओ। जैसे लाइन फाइन पे जरूरी नहीं है, मतलब वो जो मुझसे ये कह रहा था उनसे ये कह दो कि वो अपनी वो कॉल को मतलब वीडियो को वहाँ पे डिलीट कर दें, ऑडियो को। ये डिलीट नहीं होगी, मुझसे ज्यादा वो नहीं करें। उससे जो हो सके उससे कह दो, उससे जो हो सके तू और तेरी पूरी जमात एड़ी चोटी का जोर लगा के मेरे खिलाफ जो भी तेरा दिल चाहे वो करे। देखो हजरत ऐसा है ना कि आप देखिए हजरत, या तो आपने बात नहीं कराई होती इकरार साहब जी, या तो आपने बात नहीं कराई थी। मैंने कहा था ना मैं काम में हूँ, कहीं जा रहा हूँ, और आपने कहा कि 5 मिनट 5 मिनट। आपको मालूम है ना कि मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ। हाँ मालूम है। अब मुझसे डिलीट करने के लिए नहीं बोलो, और मैं इसको डिलीट करूंगा भी नहीं। नहीं चलो मान लो डिलीट नहीं तो, लेकिन कम से कम ऐसा है ना कि आपका तो वो कुछ नहीं कर सकता। आपका भी नहीं कर सकता है, हमारे लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा हाँ, इन गीदड़ भक्तियों को मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से। ये बंदर जिस तरह घुड़की देते ना, ऐसे ही ये लोग हैं। डंडा लेके दौड़ोगे तो भागेगा काम काम करता हुआ। मतलब आपने डाल दिया रजा का डंडा लेके भागो पीछे, क्या आ जाए इधर को। आपने वीडियो डाल दी है? हाँ डाल दिए। कब? आज ही डालिए, कम से कम 9 बजे के आसपास, 9 साढ़े 9 बजे। मैं तो खैर सुबह से ही देख रहा हूँ, इसमें मेरे फोन पे तो आई नहीं, जबकि मेरा तो आपका सब्सक्राइब है। हाँ तो आप देख लीजिए, निकाल लीजिए चैनल नूर हसन रज़वी नेटवर्क करके, आप बोल दीजिए, उस पर सर्च कर लीजिए। नहीं वो तो मेरा सेव है। और उसको बोलो कि तू तो कह रहा था कि अगर मेरे माँ बाप को कोई गाली बकेगा, मुझे कोई गाली बकेगा, मैं सीने से लगाऊंगा। अब मुझे क्यों कॉल कर रही है तू? चलो तो मैं बात करता हूँ, पहले मैं लाइन पे ले लूँ उसे, मैं लाइन पे ले लूँ, ठीक है? अरे नहीं कोई जरूरत नहीं है लाइन पे लेने की। हाँ मैं पहले आपकी वो ऑडियो सुनता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या है। ठीक है। ठीक। हेलो हेलो। हाँ जी। हाँ जी। अरे कालडी की भाई की बात समझ में नहीं आई आपकी क्या?
क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों उनको पटवाने के लिए घूम रहे हो तो बता दो मुझे। नहीं, तुमने तो मारा था ना अभी कादरी साहब को। हाँ, उनसे और पूछ लेना क्या होने। तुमने मारा था कादरी साहब को, क्यों मारा था जरा बताओ। उनसे पूछ लेना, मैंने नहीं मारा। चलो चलो, मैं ये तुम्हारी ऑडियो जो है ना सोशल मीडिया पे डालूंगा कि जब तुम्हारी बेइज्जती हो। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत? जी हाँ, आपने वो जो अभी आपके यूट्यूब चैनल में देख रहे थे, वो कह रहा था कि हम अपने बाप को रसूलुल्लाह जैसे समझते हैं। जी जी जी। तो उसको हमें अपने कॉल किया था अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने किया था कॉल? हाँ अभी। हाँ अभी मेरे पास फोन आया है उसी के जरिए से। जी। बोल रहा था कि भाई मेरे पास कोई फोन आया है और तुमने ये ऑडियो क्यों डाली है। हाँ, तो जिन्होंने मेरी बात कराई थी उनको कॉल किया था उसने, उन्होंने मुझे कॉल किया। जी हाँ, तो आपने क्या बोला उसको? मैं बोला कि आपका वीडियो क्लिक हम सुन रहे थे कि आप बोले कि जो जितना हम अपने बाप को प्यार करते हैं उन्हें रसूलुल्लाह करते हैं, तो तुम्हारा बाप क्या रसूलुल्लाह है? जी। तो बोला फोन रख दे का मादर चौथ कुत्ते साले साले तुम्ही लोगों ने तो मुसलमानों को दीन खराब कर रखा है, तुम्ही लोग। आपने बोला नहीं मैं आर्मी से बोल रहा हूँ। मैं बता दिया। बोला आप कौन बोल रहा है? मैं तेरे को पता नहीं मैं कौन बोल रहा हूँ। मैं बोला तेरे को ये समझना चाहिए कि तेरे खिलाफ वाला बोल रहा है, जो आले रसूल को मोहब्बत करने वाले, आला से मोहब्बत करने वाले वही बोलेंगे तेरे को फोन करके। जी। और कौन बोलेगा? बोला पूछ रहा था वो बता देते। जी कितना हो गया भाई? हेलो इसको जी हेलो। पौन किलो एक जगह होगा जी हजरत। अच्छा मगर चलो ये हो गया, इतना है और काटो एक। मगर आने वाले एक मिनट हजरत। जी जी। तो वो एक और बच्चा काट लेना, अलग अलग का है सब, साफ सुथरी देना। जी हजरत। तो हमने उसको गाली गलौज किया, वो सुनता रहा, उसने तो एक जवाब नहीं बोला उसने। तो जैसे वो पूछ रहा था आप कौन बोल रहे हैं, तो आप बता देते कि मैं मेजर क्या नाम, पूरा क्या नाम लिया जाता है आपका? हाँ, तो आप बता देते कि मैं आर्मी का जवान हूँ। अरे समझ जाता। आशिक रसूल हूँ, आला हजरत को मानने वाले, वो मोहब्बत करने वाले। आशिक रसूल ही उसको कॉल करेंगे, पर आशिक रसूलों में भी अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का बंदा रहता है। जी जी। हाँ, अब जो जिसका ईमान, छोटे भी हैं बड़े भी हैं, जिसका ईमान हक पर है तो वही फोन करेगा, ऐसे तो कोई फोन नहीं करेगा। ऐसे कैसे? और अल्लाह तबारक व तआला जब दीन लेता है ना तो अक्ल छीन लेता है। जब अकल ही नहीं रहेगी तो समझेगा क्या? हाँ बताओ। कह रहा है मैं जितना अपने बाप से मोहब्बत करता हूँ उतने ही रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। और मैंने बोला भाई अगर आपके माँ बाप को कोई गाली बके तो आप क्या करेंगे? तो बोले सीने से लगाएंगे। मैंने कहा अच्छा। तो बताइए, है कोई बंदा ऐसा अगर उसके माँ बाप को गाली बकी जाए तो वो जो है फिर भी सीने से लगाए? जूता मारेगा जूता। ऐसा ही होता है। सही बात है, ऐसा ही होता है। नहीं सुनता सामने से कोई भी। ना ना ना, कोई नहीं सुनता। अगर कमजोर भी होगा तो वो कहेगा कि भाई तुम क्यों गाली बक रहे हो? क्यों भाई? हाँ, क्यों गाली बक रहे हो? क्या बात है? ऐसे को नंबर डाल दिया करो तो हम उनको हिसाब किताब कर दिया करेंगे। जी। चलो हजरत, मैं जरा कहीं आया हुआ हूँ, इंशाल्लाह करता हूँ बाद में बात। ठीक 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 है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो 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 हेलो। जी साहब। ये फरमा रहा हूँ, आपने कल एक वीडियो पोस्ट किया है यूट्यूब पे। अच्छा, आप कौन है? उस वीडियो को हटाने का क्या लोगे अब? कौन बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं आप? बोले या तुम पेट बोले जो बताओ पहले दो जी। क्या बोले? हेलो। जी जी। नहीं, इनको आप कौन बोल रहे हैं? इतनी गालियां दूंगा अभी या इतने ताले वहां आके पेलूंगा तब भूल जाएगा। बता रहा हूँ तुझे, इस वीडियो को हटा देना। आप कौन बोल रहे हैं जनाब? तेरी माँ की चूत बोल रहे हैं हम।
बोले यार, वो बदतमीजी बोल मत कीजिए। रहे बदतमीजी तेरी बात भई ऐसे नहीं करनी यहाँ पे भोसड़ी के, तब तेरी वीडियो अपलोड करोगे। आप कौन बोल गधा रहे घोड़ा हैं? वाला कच्चर की कौन बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? पहले पता तो बताइए। हेलो, 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 हेलो। हेलो। जी, क्या हुआ? कौन बोल रहे हैं आप? अरे उसका भाई बोल रहा हूँ जिसकी वीडियो अपलोड की है कल। अच्छा, तो यार गाली क्यों बक रहे हो यार भाई? गाली तेरे को गाली तो दे दूंगा, तेरी माँ की चुत दे दूंगा 2 मिनट में, लेकिन कर अपलोड। हाँ, तो जरा उससे बात कराइए जरा अपने भाई से, जिससे बात। अरे अभी रुक जा। अरे वो तो बहुत सीधा आदमी, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ ना, उससे क्या बात करेगा? अच्छा अच्छा, कुत्ते की जात, बंदर की जात, इसे बंदर बना दूंगा। इसे देख, अभी देख कादरी को 2 मिनट में देखता चल। और तेरी बहन के लौड़े उसका फोटो लिया कहाँ से तूने? मादरचोद भोसड़ी, मुसलमानों के नाम पे कलंक को तुम बहन के लौड़े हो। तेरा भाई तो बोल रहा है कि मेरे बाप को गाली बकेगा मैं उसे सीने से लगाऊंगा। क्यों रे? अभी बता रहा हूँ, रुक जा, अभी 2 मिनट रुक, तुझे रिपोर्ट ही करूंगा साले। रुक जा। 1 मिनट रिपोर्ट करो जाके, ठीक है? कहाँ करो? कहाँ? सुना मुसलमानों, ये कह रहा है कि कादरी को पिटवाओगे या तुम पिटोटोगे। ये चिल्ले का पिल्ला, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे बदबख्तो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनों को ही इज्जत अता फरमाई है और दुश्मनाने दीनों को, दुश्मनाने रसूलों को, दुश्मनाने खुदा को जिल्लत और रुसवाई में गिरफ्तार किया है। समझे? अभी भी होश नहीं आ रहा तुम्हें? अरे तुम जैसे शैतान, तुम तो 1 नहीं 1 लाख हो जाओ फिर भी तुम हमें नहीं दबा सकते हो। समझे? और मोमिन किसी से नहीं डरता। समझा? जान जाए तो जाए पर ईमान ना जाए। तू डरा धमका के हमको दबाने की कोशिश करेगा? हैं? तू अपने कुफ्र को और अपनी खराब बातों को छुपाना चाहता है? अरे तुझसे तो मेरी बात ही नहीं हुई थी, तेरे भाई से बात हुई थी, तू बीच में कहां टांग अड़ा रहा है? और तू अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश समझ रहा है। तो शेर के लिए 1.25 शेर काफी है, बहुत है। 1-2 नहीं है, बहुत है। अगर तू पैसे में या बदमाशी में या किसी भी चीज में बहुत ज्यादा है ना, तो मोमिन जान देने से कभी नहीं घबराता। समझा? जान देने से कभी नहीं घबराता। और तू धमकी दे रहा है, ये ऐसी धमकी मुझे 360 मिलती रहती है। समझा? ये आज से तेरे जैसी धमकी मैं आज पहली बार नहीं सुन रहा। 6-7 साल से मुझे धमकी दी जाती है। ये धमकी रख अपने पास, ठीक है? और ये जो तू कह रहा ना ऑडियो डिलीट कराओ, मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मैंने तुझसे कहा कि तू अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दे, ठीक है? मैं अदालत में भी तुम लोगों को, तुम्हारी जमात को जलील और रुसवा करूंगा इंशाअल्लाह। आई बात समझ में? हेलो हेलो, हेलो जी कौन भाई? कादरी जी से बात हुई है आपकी? कौन? इकरार कादरी जी। क्यों? बोलिए, बताइए। उनसे पूछ लेना उनका क्या असर हुआ है अभी, इसलिए आप अच्छे और समझदार इंसान हैं, क्यों मैं तो खराब इंसान हूँ। क्या करा है उनके साथ आपने, जरा बताइए। उनसे खुद आप पता करिएगा। नहीं, बोलिए। हाँ, तुम्हारे भाई ने बात क्यों की फिर मुझसे? मेरे भाई ने तो तुमसे तो छोड़ो, उनका पूछो दाढ़ी वाड़ी अभी क्या हुआ उनके साथ, ठीक है? हाँ, सुनिए, तुम्हारा भाई तो कह रहा था कि तुम्हारे बाप को कोई गाली बकेगा तो वो जो है गले से लगा के उसको वो सेंड कर लेगा ना, वो कर लेगा ना, घर में सभी एक से थोड़ी ना है। अच्छा, यानी तुम गुस्ताखे रसूलों के साथ ही रहोगे? अच्छा, ऐसा करो, तुम मेरे भाई से बात कर लो, ठीक है? तो नहीं, तुम गुस्ताखे रसूलों से जो है, चलो मेरे चाची से बात कर लो, किसी से तो बात कर लो तुम। क्या बात? मैं कॉल लगा रहा हूँ, ठीक है? बात करिएगा। क्या बात करनी है?
वो आपको बताएंगे नहीं, वो गुस्ताख रसूल है या कुछ भी वो बता देंगे। ये बता रहे थे ना क्या कि अगर तुम्हारे बाप को कोई गाली बकेगा तो तुम उसको गले से लगाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ, हम मैं गले लगा सकता हूँ ना, सभी थोड़ी लगा सकते ना, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। यही कहा गया था ना कल। अच्छा, यही कहा गया था। हाँ, तो कल ऐसा करिए, या तो उस वीडियो को तुम्हारी मर्जी का है। नहीं, आप उस वीडियो को डिलीट कर दो या मत करो, तुम्हारी मर्जी का है। मैं क्या कह रहा हूँ, बात करा रहा हूँ उनसे, बात तो कर लो 1 मिनट। मैं कह रहा हूँ दिन तुम्हारी मर्जी का है। अब तुम बात भी करने में डर रहे हो। मैं किसी भी बदबख्त से नहीं डरता। नहीं तो फिर बात रास्ते में हूँ, प्लस बात करो 1 मिनट, बात कराओ। ਤੁਸੀਂ जिस व्यक्ति नाल गल कर रहे हो उसने ਤੁਹਾਡੀ कॉल ਨੂੰ होल्ड ते रखा होया है। कृपा करके लाइन ते बने रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ਤੁਸੀਂ जिस व्यक्ति नाल गल कर रहे हो उसने ਤੁਹਾਡੀ कॉल ਨੂੰ होल्ड ते रखा होया है। कृपा करके लाइन ते बने रहो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके ਤੁਸੀਂ जिस व्यक्ति हेलो हेलो हाँ हेलो बता नितिन ने कि अलग किधर गए, जन्नत में गए, दोस्तों में गए, भांग पी के आया, शराब पी के आया है? बेटा मेरी अकल तो ठिकाने पे है, लेकिन नहीं ठिकाने पे नहीं है। भांग पी के आया कि शराब पी के आया, मुझे ये बता पहले। मैं तो सर कब से पूछ रहा हूँ, बेटा बता दे मुझे, आला घर के ऊपर क्या फतवा लगेगा? अरे तू भांग पी के आया है, शराब पी के आया है, क्या पी के आया ये बता। तू बेटा जवाब दे, तू मत सोच। नहीं तू मुझे बता दे, भांग पी के आया कि शराब पी के आया है? मैं क्या कह रहा हूँ? अरे तूने पिए क्या है? मैं क्या पी कर रहा हूँ? तू सिर्फ अपने अकल और डोडा उड़ा लगाया है क्या तूने, या अफीम उफीम लगाई है? वो चरस गांजा पी के आया है? आला हजरत कहाँ गए? अरे चरस गांजा पी के आया है, क्या पी के आया है? आला हजरत ने जो इबारत नकल की हुई है, मेरे आला हजरत की गवाही तो सैयद आले रसूल, मेरे आला हजरत की गवाही तो सैयद आले रसूल देते हैं। सैयद आले रसूल महरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे एक फिक्र सताती थी, और वो ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मैदान महशर में मुझसे पूछ लिया कि आले रसूल दुनिया से मेरे लिए क्या लाए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मगर जब आला हजरत जो है उनसे मुरीद हो गए तो कहते हैं कि मेरी वो फिक्र दूर हो गई, और कहते हैं कि अब अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझसे पूछ लिया तो मैं जवाब दूंगा, या अल्लाह मैं दुनिया से अहमद रजा लाया हूँ, तू बता, मैं ये आशिक रसूल लाया हूँ। पर झूठ बांधने वाला मुसलमान है काफिर है? अबे बदबख्त कहीं के, तू ये बता कि तू जो ये बकवास कर रहा है कि वो कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए हैं, तो ये सैयद आले रसूल की जो बात है तो इसको तस्लीम करता है कि नहीं करता? लिखा है, मैं तो सिर्फ बयान कर रहा हूँ। तू सैयद आले रसूल को मानता है कि नहीं मानता? अच्छा तेरी जमात क्या है? तेरी जमात क्या है बोल? मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं तेरी जमात क्या है बोल? क्यों है? तेरी जमात क्या है? पहले अपनी जमात का पता दे, फिर तेरा तुझे नंगा करता हूँ फिर बेहतरीन तरीके से। वाला जाहिल है या नहीं, बस इतना बता कि नबी की बीवियां कब्र में पेश की जाती हैं। अच्छा ये बात कौन सा हदीस में, कौन कुरान में, कौन से ऐप में? वो आधा किलो वाला बेटा बता, है तेरे पास कोई कुरान की आयत या कोई हदीस? क्या है, भाग गया क्या? अच्छा चल ठीक है फिर। हेलो हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि तेरा मसला क्या है, तेरी जमात क्या है, जरा बता। पहले मुझे इसकी दलील दे, ये बात काम मुझे बताना कि तेरा मसला क्या है, तेरी जमात क्या है, तू किसको मानता है, तभी तो बात होगी, मजा आएगा बात करने में। मैं क्या बोल रहा हूँ, देख तुझे कैसा नंगा करता। ये अल्फाज किधर मौजूद है? कुरानी कौन से हदीस, कौन से हदीस में है? सारी चीजें कुरानी हदीस में ही होती हैं क्या? है? और नबी पर नहीं, सारी चीजें कुरानी हदीस में ही होती हैं क्या? उल्लू के पट्टे, क्या मतलब? नबी की सारी चीजें कुरान हदीस में ही होती हैं क्या? और नबी की हदीस तू क्या क्या, एक मिनट, जो कुरान हदीस में नहीं है वो तू नहीं करता? एक मिनट, जो कुरान हदीस में नहीं आया वो नहीं करता है तू, ये बता। मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं मुझे जवाब दे, अगर तू कुरान हदीस को ही मानता है और कुरान हदीस के अलावा तू कुछ भी नहीं करता, तेरा ईमान है या नहीं? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, अगर तू कुरान हदीस के अलावा कुछ नहीं करता तो बता। अरे चुप रहा है कि नहीं चुप रहा? ईमान है या नहीं? अबे शैतान के पुत्र खाली बकवास कर सकता है। ओ तेरा नाम क्या है रे, जिसे जो तू इसको लाया है? ये तो तुझसे भी बड़ा पागल लग रहा है बे।
मैं क्या बोल रहा हूँ, तेरा ईमान है या रामपुर नहीं जाइए। कि नबी की बीवियां कब्र में सलाम पेश की जाती हैं? क्या भाग गया? अबे चिल्ले के पिल्ले, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। इतना बता, तेरा ईमान है या नहीं? नबी की बीवियां कब्र में अच्छा पेश ये की बता, जाती हैं। नाकिल पर फतवा लगता है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, और ये तेरा ईमान गुस्ताखी, है या नहीं? और ये तो गुस्ताखी ईमान नहीं है। करना। और तेरी पूरी जमात देवबंद को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर इसको गुस्ताखी साबित कर दे तो लेकर ये बड़े से बड़े को गुस्ताखी निकाल के तू। कि नबी की बीवियां कब्र में पेश की जाती हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, तेरी पूरी जमात देवबंद अगर इसको गलती साबित कर दे, सच होने मैं कह रहा हूँ गुस्ताखी अगर इसको साबित कर दे तो लेकर तू पूरे। सच होने की दलील देना। अबे नबी ने खुद फतवा लगा। देखो मुसलमानों, ये इसी तरह के बेअकल लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं मालूम कि हुक्म किस पर लगाया जाता है। हालांकि वो गुस्ताखी भी नहीं है और नाकिल पर कोई हुक्म नहीं आता। तो गुस्ताखी तो सच साबित कर देना। अबे चिल्ले के पिल्ले, मैं तुझसे कह रहा हूँ नाकिल पर नकल करने वाले पर कोई हुक्म नहीं आता। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने तो उस बात को नकल किया है। नकल किया है, तूने बात बोल दी, बहुत अच्छा कर, तुम नकल किया है। जो तुझे लाइन पर लाया ना, जो तुझे लाइन पर लाया, मैं उसी पागल को समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी जमात में ऐसे ही बेवकूफ और पागल आदमी होते हैं, समझे? ऐसे ही शैतानों की वजह से तुम्हारी जमात देवबंद बदनाम है, समझे? तू अपने जायज बाप के औलाद है तो ये वीडियो यूट्यूब पर डालेगा तू, इंशाअल्लाह ये पड़ेगी शैतान के पुत्र, और तुम मुझे दलील दे ये जाएगी। कि ये बात कहाँ मौजूद। और मैं तुझसे रास्ते में चलते हुए बात कर रहा हूँ बे हरामखोर, तुझसे रास्ते में चलते हुए बात कर रहा हूँ मैं। अब तो गंजी से क्या बात करना, मैं तो चलते में बात कर, मैं कहीं जा रहा हूँ, काम पड़ गया मुझे। बाइक पर बैठ कर बात कर, तो चलते में क्यों बात कर रहे हैं? अरे कहीं जा रहा हूँ, काम पड़ गया मुझे, इसलिए तुझसे बात कर रहा हूँ कि तू और तेरी जमात का ये पागल आदमी ये न कहे कि देखो कॉल काट कर भाग गया, समझा? दलील देना फिर शैतान के पुत्र। अरे तो तू उसे गुस्ताखी साबित करना। तो कर तो नबी की हदीस मौजूद है, मैं क्या फतवा लगाऊं? नबी की हदीस मौजूद है कि जिसने मेरे ऊपर झूठ बांधे वो अपना मकाम दोज़ख में देख ले। अच्छा तो ये बता कि तेरा बाप जो इस्माइल देहलवी लिख के मर गया कि माज़अल्लाह गोया हुजूर ने ऐसा फरमाया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, चल वो हदीस दिखा कि हुजूर की वो कौन सी हदीस है, दिखा अगर किसी ने कत्ल दिखाना वो कौन सी हदीस है हुजूर की जिसमें हुजूर ने फरमाया हो कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूँ, दिखा। ये बात कहना चाहता अबे दिखाना हरामखोर, हमारे बुजुर्ग ने की है, दिखाना बुजुर्ग ने भी की हुई है, हम तो तू दिखा। अबे साले हरामखोर शैतान, पहली बात मैंने तुझे ये समझा दी कि नाकिल पर कोई हुक्म नहीं आता, समझा? नाकिल पर नकल करने वाले पर कोई हुक्म ही नहीं आता। तो नबी ने हुक्म लगा तो दिया, जिसने मेरे पर झूठ नकल करने वाले पर कोई हुक्म नहीं आता, समझा? और तेरा बाप इस्माइल देहलवी जो है जो मरकर मिट्टी में मिल गया, उसने हमारे नबी के लिए ऐसा जुमला लिखा है। नबी ने खुद फतवा लगाया, जिसने मेरे पर झूठ बांधा वो अपना। हाँ तो फिर लगा इस्माइल देहलवी पर फतवा, लगा फिर इस्माइल देहलवी पर फतवा। और इलियास घुम्मन ने, सुन, इलियास घुम्मन ने भी कहा है जिसका इस तरह का अकीदा हो वो काफिर है। बता इलियास घुम्मन ने सही कहा है कि नहीं? इलियास घुम्मन के फतवे से, इलियास घुम्मन के फतवे से तेरा बाप इस्माइल देहलवी काफिर हुआ कि नहीं? बस इतना बता, तू सच्चा है या नहीं? तू मुसलमान है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ, तो दलील समझा? अगर तू मुसलमान है तो दलील लेकर। अच्छा दलील दूं तुझे, दलील दूं तुझे? खोल तकवीतुल ईमान, खोल तकवीतुल ईमान, मौजूद है, खोल तकवीतुल ईमान। तेरे बाप की ये बात भेज रहा हूँ। लिखी है अलग में लिखी है, उसकी दलील मांग रहा हूँ गधे। अरे तो दावा जो करता दलील वो देता बे, चिल्ले के पिल्ले, तुझे यही नहीं मालूम? दे तो दी, किताब तेरे सामने रख दी, हदीस भी नबी के सामने रख दी। अरे शैतान के पुत्र, ये असल है कि नकल है? अलग रखना लिखा है कि नबी की बीवी कब्र में पेश। अरे असल है कि नकल है ये बता? अबे तो मैं तुझसे वो से कह रहा हूँ। अबे असल है कि नकल है ये बता? नकल किया अलग। अबे चिल्ले के पिल्ले, तेरे जैसे पागल जब तक देवबंदी जमात में रहेंगे इंशाअल्लाह इसी तरह तेरी जमात देवबंद रुसवा होती रहेगी इंशाअल्लाह, समझा? कोई नहीं बचा सकता है बेटा, वो तो पब्लिक ही फैसला करेगी, कोई नहीं बचा सकता दलील और रुसवा होने से, समझा? बेटा डालेगा ना तो पब्लिक फैसला करेगी, तू फैसला। अरे कोई नहीं बचा सकता है जब तक तेरे जैसे चूकी और बेवकूफ इंसान तेरी जमात में रहेंगे ऐसे, समझा? हाँ एक जाहिल ईमान की। अबे जाहिल, तुझसे इसलिए बात की कि मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में ही तुझसे बात कर रहा था, इसलिए कि साले तुम लोग कहते हो कि देखो वो फल आया तो वो भाग गया, जवाब नहीं दे पाया, जवाब देने की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी तो भाग गया, इसलिए तुझसे बात की है, तुम मेरा कॉल उठाता समझा?
सुनना, तू मेरा कॉल नहीं उठाता है, तुझे मैं दिन में 2 बार कॉल करता हूँ। दुनिया देवंदियत में अभी तक किसी देवंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया। मैं चौराहे पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, जो मुझसे बात करके अपने आप को हक पर साबित कर दिया। आजा, लिया तू अपनी पूरी जमात के बड़े से बड़े आलिम को लेके आ, मैं बात लेके आ, कर रहा हूँ, तो हक पर साबित कर दे तू अपने आप को। तो तू साबित कर दे कि नाकिल पर फतवा लगता है। लगा हुकुम, तू पहले लगा हुकुम, नाकिल पर फतवा लगता है। बात कह रहा, लगा नाकिल पर फतवा लगता है। मैं पहले के जो कह रहा हूँ, नाकिल पर फतवा लगता है, हुकुम लगा। अबे तो नबी ने लगा हुकुम यार, अरे लगा हुकुम, नकल करने वाले पर फतवा लगता है। लगा हुकुम। अबे तो दुनिया देवंदियत में अभी तक किसी देवंदी औरत ने बच्चा ही पैदा नहीं किया। जो मुझसे बात करके अपने आप को हक पर साबित करते, अपनी जमात को हक पर साबित करते, और 4 देवंदियों को हक पर साबित कर दे। खुद हुकुम लगाया है, समझा? हुकुम लगाने वाले तेरी जमात में जब तक तेरे जैसे पागल रहेंगे ना, जब तक कोई भी कोई भी जमाते देवंद को जिल्लत और रुसवाई से कोई नहीं बचा सकता। चल अब मैं जा रहा हूँ कहीं, ठीक है, रख रहा हूँ फोन। रसूलुल्लाह पढ़वाए वो अकलदार, तौहीद बयान करो पागल। हेलो 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 जी साहब, ये फरमा रहा हूँ, आपने कल एक वीडियो पोस्ट किया है यूट्यूब पे। अच्छा, आप कौन है? उस वीडियो को हटाने का क्या लोगे अब? कौन बोल रहे हैं आप? कौन कादरी बोले या तुम पे बोले जो बताओ पहले दो जी। क्या बोले? हेलो जी जी, नहीं इनको आप कौन बोल रहे हैं? इतनी गालियां दूंगा अभी या इतने ताले वहां आके पेलूंगा, सब भूल जाएगा। बता रहा हूँ तो इस वीडियो को हटा देना। आप कौन बोल रहे हैं जनाब? तेरी माँ की चूत बोल रहे हैं हम। बोले वो बोल रहे बदतमीजी तेरी बात भैया चौधरी खरीदी पे घोषणी के, तब तक वीडियो अपलोड करोगे। आप कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? पहले पता तो बताइए। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम वालेकुम मत कहा करो, पहले भी मैंने समझाया था। मेरे सलाम का जवाब दो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, तो फिर आप मतलब करोगे नहीं उसे? नहीं, वो जो धमकी दे रहा है ना, वो मुझे भी मारे और आपको भी मारे, हमें सिर्फ मार ही तो लेगा ना। हमारे दिल से रसूल पाक की मोहब्बत तो थोड़ी छीन लेगा। वो नहीं, अगर हम मर भी जाएंगे तो हमारे दिल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं निकलेगी। और ऐसे दुश्मनों को, ऐसे शैतानों को हम जलील और रुसवा करते रहेंगे। ठीक है हजरत, बस मेरी तरफ डरिए मत। रसूलुल्लाह का गुलाम डरता नहीं है। नहीं डरता नहीं, मैं डरता नहीं हूँ। और मैं रास्ते में हूँ कहीं, मतलब कहीं आया हुआ हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत सारे लोगों के सामने बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरी बात सुनो। और यहाँ अपने और पराये सारे लोग हैं। अगर आप, मैं भी हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के सिलसिले से वाबस्ता हूँ, और अगर आपके दिल में जरा भी उनके लिए भी मोहब्बत होगी, नहीं, अगर आपके दिल में उनके लिए जरा भी मोहब्बत होगी तो आप इस ऑडियो को आप डिलीट कर दीजिए। नहीं, नहीं साथ नहीं दूंगा, लेकिन आज के बाद उनसे बिल्कुल राब्ता बिल्कुल खत्म ही कर दूंगा। बिल्कुल खत्म करो, बिल्कुल खत्म। हाँ, लेकिन आप जरा मेरी ऑडियो डिलीट नहीं होगी। और ये वाली भी पड़ेगी जो इसमें धमकी दी है कि मैं इकरार कादरी को मारूंगा, या मैंने मारा है, या उनकी गाड़ी तोड़ दी, या मैंने उनको ऐसा मारा है, या उनकी दाढ़ी नोच ली, तो ये सब मैं डालूंगा यूट्यूब पे। नहीं, आप तो फिर मेरी बेइज्जती कराओगे यहाँ पे। नहीं, आपकी बेइज्जती नहीं है ये। सुनिए मेरी बात सुनिए। हमारे एक पीर साहब हैं, आपको मारा है इन्होंने, पहले ये बताइए आप। नहीं, हाथापांची होगी उनके बाप वाले साहब से मेरी। अब मेरी नहीं, तो उनका वालिद क्यों लड़ रहा है भाई? उनका बेटा तो कह रहा था। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए आप। हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान रखना इकरार कादिर साहब। मैं ये बताऊंगा आवाम अहले सुन्नत को कि ये जब ये दुश्मनाने रसूल जब अपनी बेइज्जती को सुनते हैं। नहीं, आप तो फिर मुझे मतलब ना मुसलमानों को दिखाना है कि ये कितने बड़े शैतान होते हैं। कोई बात नहीं। सुनिए हजरत कादरी साहब, मैं ये बहुत दिनों पहले से बताता चला रहा हूँ कि जहाँ इनका जितना जोर चलता है ये उतना ही जुल्म करते हैं।
जितनी इनकी पावर होती है अपनी पावर के हिसाब से जितना इनसे जुल्म हो सकता है उतना जुल्म करते हैं ये मुसलमानों पर। तो ये आप पर भी जुल्म कर रहे हैं ना? नहीं, मेरी बात तो सुनिए आप। ये आप पर जुल्म कर रहे हैं ना, हाथापाई हुई है ना? पहले मेरी पूरी बात सुनिए आप, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। आप मर सकते हैं, जान दे सकते हैं, पर ईमान नहीं दे सकते। एक मिनट मेरी पूरी बात तो सुनिए आप। सिकंदरा राव आपने सुना है? सिकंदरा राव सुना है? हाथरस जिले में। हाँ सुना है ना। मैं मतलब इन लोगों से पूरी तरीके से राब्ता खत्म कर दूंगा जो भी है मेरा। बिल्कुल खत्म कीजिए। इसमें अभी भी आप होश में नहीं आ रहे हैं। कुरान ने 14 साल पहले फरमा दिया। मेरा अकेला घर है यहाँ पर, इस बस्ती में मेरा अकेला घर है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मतलब जिस तरीके से प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत इन लोगों से होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, मेरी आप समझ ही नहीं रहे हो आप। मतलब मैं उस प्यार मोहब्बत को अपने मतलब दुनिया वालों को दिखाते हुए मैं यहाँ से चला जाऊं, समझ रहे हो ना आप? तो आप अगर जरा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते होगे, आप तो मुझे रोक रहे हो, आप तो मेरे हाथ पैर बांध रहे हो। मैं बस एक सेकंड के लिए आप मेरे हाथ पैर बांध रहे हो। आप इस ऑडियो को आप ये कहते तू ये काम करना छोड़ दे, बात खत्म हो गई, या तो मुझे मेरी बात होती है। वो मैं उससे बात कर लूंगा बाद में, लेकिन आप जरा प्लीज मेरी तरफ सोच लो। और अगर आप बाकी में नबी को चाहने वाले हो गए तो आप इस ऑडियो को डिलीट मार दोगे। मैं नहीं करूंगा ना डिलीट, ये भी डालूंगा मैं। तो फिर आप चाहते ही नहीं हो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर आप ऐसा भी तुम समझो। नहीं, तो फिर आप सुन्नत की इस्लाह के लिए काम करता हूं। नहीं, तो फिर जब हम आपको इतनी बड़ी कसम दे रहे हैं, कसम मुझे तुम्हारी कसम चाहिए ही नहीं ना। नहीं, तो फिर आप मैं दिखाऊंगा क्या? नहीं, फिर कोई बात सुनिए, मैं दिखा क्या पाऊंगा कि ये लोग कितना जुल्म करते हैं मुसलमानों पर? मैं क्या दिखा पाऊंगा अगर तुम्हारी बात मानूंगा तो? वो बात सही है आपकी, बस तुम तो जुल्म को छुपा रहे हो। नहीं सुनिए, एक बात मेरी सुनिए कादिर साहब, बोलिए। जुल्म करने वाले से बड़ा मुजरिम वो है जो जुल्म सहता है। सही है, मैं जानता हूँ। तुम जुल्म सहने वालों में से हो? नहीं, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती हैं कि उस टाइम मतलब तो आप मुझे मैदान जंग में आदमी दुश्मन को मात देने से अच्छा है अगर बाई चांस अगर ऐसे दबरे आए कि उससे वापस लौटे आए फिर उस पर दोबारा हमला करे। मुसलमान कभी बचने की नियत से गए नहीं मैदान जंग में? गए तो नहीं, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा दिखाई दे रहा है कि वहां पे अपनी जान जा सकती है तो अगर 2 कदम पीछे हट से आए तो उसमें कोई मतलब वो बेइज्जती वाली बात नहीं है। अगर 2 कदम पीछे हट के कादिर साहब यार तुम जी बोलिए। मुझे ज्यादा मत समझाने की कोशिश करो। मैं आपको जो भी आपका मामला है, जो भी रास्ता है, मैंने आपको पहले ही कल मना किया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं काम से हूँ, बस आपने जिद होके मुझे बात कराई, और जब बात कराई तो अब आप कह रहे हो कि डिलीट करो। नहीं, देखिए आप, अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊं? जब मैंने आप मुझे मत समझाइए, मैं डिलीट ही नहीं करूंगा उसको। नहीं, मैं आपको इसने जो धमकियां दी है ना तुम्हें और मुझे, इसने जो धमकियां दी है आपको मुझे, फिर वही बात अपने पीर का ऐसा है। मैं तुम्हारा फोन काट रहा हूँ जी। काय का बात? तुम मेरा हाथ पैर बांध रहे हो तुम तो? नहीं, बांध नहीं रहे हो, मतलब मेरे हाथ पैर तुड़वाने के इरादे से हो आप? ये तो पहले सोचा होता ना तुमने। अब मुझे क्या मालूम थी कि आप मतलब हर रिकॉर्ड? मैं हर रिकॉर्डिंग डालता हूँ मैं। नहीं, तो मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी ना। ऐसे यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको जानकारी नहीं? मुझे इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि आप मतलब हर ऑडियो को मतलब जालिमों का जुल्म छुपा रहे हो। नहीं, छुपा नहीं रहा हूँ मैं। छुपा रहे हो, दबाना चाह रहे हो उसको। नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात। अब सामने वाला अच्छा ये बताइए, थानवी ने नौतविया मेठवी गंगोही को काफिर मानते हैं या मुसलमान? काफिर मानते हैं ना? पक्का। तो काफिर के कुफ्र में जो शक करता है वो भी काफिर है। वो भी काफिर है। तो ये लोग तो उसे मुसलमान मानते हैं। नहीं, वो मानते हैं। सुनिए, पहले बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। मानते हैं ना? और मैंने इनसे पूछा कि आप अपने वालिद से कितनी मोहब्बत करते हैं, तो क्या हाँ मैं अपने वालिद से मोहब्बत करता हूँ। और मैंने कहा रसूल पाक से और अपने बाप से कितनी मोहब्बत करते हैं? रसूल पाक से ज्यादा करते हैं या अपने बाप से ज्यादा करते हैं? तो इन्होंने क्या कहा कि मैं दोनों से बराबर करता हूँ। इनको ये नहीं मालूम कि हमें रसूल पाक से कितनी मोहब्बत करनी चाहिए, हुजूर का हुक्म क्या है, हुजूर का ऐलान क्या है। या जब उनको इतना इल्म नहीं है तो आते क्यों बहस करने, बकवास करने, या तुमको समझाने आते क्यों है कि यहाँ चलो वहाँ चलो? अरे यार, हमारा जब रास्ता नहीं है इन लोगों से, हम जमात में क्यों जाए? मैं वही बात तो कह रहा हूँ आपसे कि बस मैंने देखो 2 लोगों का आपको वास्ता दिया है। फिर वही बात, आप मुझे वास्ता क्यों दे रहे हैं? मैं यही तो चाहता हूँ, क्यों मुझे आप वास्ता दे रहे हैं भाई? इसलिए दे तुम दुश्मन, एक मिनट, तुम रसूलुल्लाह के दुश्मनों को छुपाना चाहते हो? नहीं, वो तो जब अल्लाह चाहेगा तो फिर वही बात देगा। देखो अल्लाह तबारक व तआला का कुरान में फरमान है, वो जिस दिन चाहेगा
اللہ तबारक व तआला जिसे चाहता है इज्जत अता करता है, जिसे चाहता है जिल्लत और रुसवाई में गिरफ्तार कर देता है। बेशक तो इसको अपनी जिल्लत और रुसवाई नजर आ रही है ना, मुझे तो इसमें आपको भी सवाब मिलेगा। सुनिए मुझे यार, सुनिए वो कौन, वो सहाबा इकराम की शान देखो, कैसी शान थी उनकी कि अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जंग में चले जाया करते थे। यहाँ तो जंग भी नहीं हो रही है, तुम वैसे ही डर रहे हो यार। अरे जान देने का मौका क्या, तो क्या करोगे भाई? है मुसलमानों से कहोगे कि जंग मत लड़ो? नहीं, बात वो नहीं है यार, तुम मुझे मत समझाओ कादरी साहब। नहीं, देखिए नूर हसन भाई, मतलब बात वो नहीं है हजरत। मैं उसमें का आदमी नहीं हूँ कि मैं जंग से पीछे हट जाऊं, लेकिन मुझे मत समझाइए। वो अब अपनी हकीकत को जान चुका है, ठीक है, और उसके घर वालों ने उसकी पूरी ऑडियो को सुना होगा, ठीक है, और उसने खुद कहा है कि मैं अपने बाप से और रसूल पाक से बराबर मोहब्बत करता हूँ। तो मुसलमान बस इसी बात से फैसला कर लेंगे यार। हाँ तो हो जाएगा, अब सुन लिया। हाँ? मतलब अब आप डिलीट मत करवाइए, मैं डिलीट करूंगा ही नहीं। देखिए मैं नहीं करता हूँ ना डिलीट। कादरी साहब फोन काट दीजिए अब, आप समझे भाईजान? मैं बता तो रहा हूँ कि मैं अपने जो हमारे पीर हैं, हाँ, चांद मियां कादरी बरकाती, हाँ, फुर्दल नगर में ही रहते हैं। आप अगर उनके इस नाम से अगर यूट्यूब पे निकालोगे तो वो निकल आएंगे। चलिए तो बात करा दीजिए मेरी। हाँ मतलब आप, मगर आप कभी ये सोचते हो कि मैं उनके कैंसर डिलीट करूं? नहीं, एक सेकंड में जरा उनको लाइन पे लूं। हाँ लीजिए। ठीक है, एक सेकंड। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। हो सकता है वो अभी किसी में बात में बिजी होंगे, मैं आपसे बात करा दूंगा उनकी। ठीक है फिर। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। अरे कादरी की भाई की बात समझ में नहीं आई आपकी? क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों उनको पटवाने के लिए घूम रहे हो, तो बता दो मुझे। नहीं, तुमने तो मारा था ना अभी कादरी साहब को। हाँ, उनसे और पूछ लेना क्या होने। तुमने मारा था कादरी साहब को, क्यों मारा था जरा बताओ। उनसे पूछ लेना, मैंने नहीं मारा। चलो मैं ये तुम्हारी ऑडियो जो है ना सोशल मीडिया पे डालूंगा कि जब तुम्हारी बेइज्जती हो। सुना मुसलमानों, ये वहाबी देवबंदी जब जलील और रुसवा हो जाते हैं तो कमजोर मुसलमानों को ये धमकियां देने की कोशिश करते हैं। यही है इनकी हकीकत। अरे जब तुम हक पर हो तो धमकी की क्या जरूरत है भाई? धमकियां दे रहे हैं, मारने पीटने की बात कर रहे हैं, वैसे कहते हैं यार इत्तेहाद रखो, आपस में प्यार मोहब्बत रखो। है? तुम हमारे नबी की शान में तौहीन भी करो और हमें मारो पीटो भी, और फिर भी हम तुमसे इत्तेहाद रखें। और एक बात और बता दूं कि ऐसे कमजोर दिल वाले या कमजोर हिम्मत वाले जिनकी हिम्मत उतनी नहीं है कि सामने वाले से मुकाबला कर सकें, वो मेरी बात ना कराएं। ठीक है? आज के बाद कोई भी मेरी बात ना कराए जो अपनी पावर ना रखता हो, जो इतनी हिम्मत ना रखता हो कि सामने वाले से बात करे या वो उसे मारने पीटने की धमकी दे। ठीक है? ऐसा कोई भी शख्स मुझसे किसी की बात ना कराए, क्योंकि मैं बात करके गुफ्तगू करके सोशल मीडिया पे डाल देता हूं। पहली बात तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं कहीं जा रहा था, जल्दी में था। मगर उन्होंने कहा कि सिर्फ 5 मिनट। जब कहा 5 मिनट तो फिर मैंने बात की, और 5 मिनट में क्या आधा घंटा खिंच गया, आधा घंटा बात हो गई। बहरहाल कोई भी भाई हो, पहले अपना जिगरा देख लें। अगर वहाबी देवबंदी से मुकाबला करने का जिगरा हो, रिश्तेदारी जो है ऐसे बदअकीदों से रिश्तेदारी खत्म करने का इरादा हो, और कुरान पाक की आयत पर पूरा मुकम्मल खरा उतरने की ताकत और पावर हिम्मत है, तभी बात कराए,
ورنہ میری بات نہ کرائے. ٹھیک ہے, تم اپنی دنیا اور اپنی دولت میں مست رہو. ٹھیک ہے, جس میں ہمت ہے, جگرا ہے, ان سے ٹکرانے کا, دشمنان رسولوں سے لڑنے کا, بس وہی لوگ میری بات کرا سکتے ہیں. ورنہ پھر یہ نہ کہنا کہ یہ آڈیو ڈیلیٹ کرو, وہ آڈیو ڈیلیٹ کرو. میں کوئی بھی کسی کی بھی آڈیو ڈیلیٹ نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی, میں نے اپنے عقیدے کی بات کہی ہے, اس نے اپنے عقیدے کی بات کہی ہے. یہاں کوئی لڑائی جھگڑا تھوڑی ہے, یہاں کوئی تلواریں تھوڑی چل رہی ہیں. ایک دیوبندی کہتا ہے کہ جو میرے ماں باپ کو گالی بکے گا میں اس کو اپنے سینے سے لگا لوں گا. دوسرا کہتا ہے ماں بہن کرتا ہے, دوسرا ماں بہن کی گالی بکتا ہے, دھمکیاں دیتا ہے, کہتا ہے تو پٹے گا یا قادری کو پٹوائے گا. میں کہتا ہوں دیو کے بندرو, ہوش میں آ جاؤ, ہوش میں آ جاؤ. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے, مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. خیر, اللہ حافظ, فی امان اللہ. فیصلہ آپ کو کرنا ہے مسلمانوں. آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, لائک اور شیئر بھی کریں, گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.